मिठाई दी मां। 15 साल कलसूम रानी जो कि यहाँ इसी गांव के वडेरे उनके घर पर वो काम किया करती थी। उनके किसी साहबजादे ने, किसी अमीर जादे ने उस मासूम सी बच्ची को अपनी दरिंदगी का निशाना बना दिया। जुल्म जना मेरी बेटी नाल करदे रहे ने जी। सारा जिम्मेदारी ਉਹਨੇ ਚੁੱਕੀ ਹੋਈ ਸੀ ਘਰ ਦੀ ਜੀ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਗਈ ਸਾਂ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿਣ ਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਤੂੰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣਾ, ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਮੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਤੇਰੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਮਾਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਹਾਮਲਾ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਹਾਮਲਾ ਚੌਧਰੀ ਦਨਾਨ, ਚੌਧਰੀ ਬਲਾਲ ਔਰ ਚੌਧਰੀ ਸਮਾਨ। ਇਹ ਕੌਣ ਹੈਗੇ ਨੇ? ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਜੀ। ਸਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੜੀ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਖਰੀ ਸਾਹ ਸੀ ਉਹਦੇ ਕੋ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਰੋ ਕੇ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਅੰਮੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮਰ ਚੱਲੀ ਆ ਤੇ ਉਹ ਦਰਿੰਦੇ ਵੀ ਨਾ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹਿਣ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं एडी मलिक और इस वक्त पत्तों की के एक छोटे से गांव में और एक गरीब फैमिली जो इंसाफ के लिए दर बदर भटक रही है। ये तकरीबन 10 दिन पहले एक वाकया होता है कि 15 साल कलसूम रानी जो कि यहाँ इसी गांव के वडेरे जो इस गांव के जागीरदार थे उनके घर पर वो काम किया करती थी। लेकिन उसी दौरान उनके किसी साहबजादे ने, किसी अमीर जादे ने उस मासूम सी बच्ची को अपनी दरिंदगी का निशाना बना दिया। जब वो बच्ची तकरीबन 7 माह की हामला हुई तो उसके घर वालों को पता चला, तो फिर उसके बाद मामला जो है वो एक तूल अख्तियार कर गया और एक नई जंग छिड़ गई। ये नाज़रीन कराम गरीब फैमिली जो कि अपनी बेटी के साथ होने वाले जुल्म का इंसाफ लेने के लिए कभी डीपीओ कसूर के दफ्तर के चक्कर लगाती है तो कभी थाने के चक्कर लगाती है। लेकिन ये दरखास्त जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पर भी और जो मेरे हाथ में ये दरखास्त है, ये दरखास्त लेकर ये लोग दर बदर भटक रहे हैं। ये लोग इसीलिए दर बदर भटक रहे हैं क्योंकि ये लोग गरीब हैं। ये शायद इन पुलिस वालों को रिश्वत नहीं दे सकते, ये शायद उनको अपनी बेटी के साथ होने वाले जुल्म के खिलाफ कुछ पेशकश नहीं कर सकते। लेकिन सबसे पहले हम जानते हैं कि इस तरह की जो मासूम और गरीब घर की जो बच्चियां जो लोगों के घरों पे काम करती हैं उनको जिनसी ज्यादती का निशाना बनाने के बाद जब उन्हें मौत के घाट उतार दिया जाता है तो फिर उसके बाद इंसाफ लेने वालों के बारे में क्या कुछ कहा जाता है और क्या धमकियां लगाई जाती हैं, सारा कुछ कलसूम के वालिदैन से जानते हैं। कुछ और भी उनके अजीजों कारिब हैं, उनसे भी जानते हैं कि ये असल मामला है क्या और जो जिन लोगों ने ये सारा कारनामा किया है वो लोग कौन है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। बाजी क्या नाम है आपका? मेरा नाम फरजाना है जी। ये कलसूम आपकी क्या लगती है? मेरी बेटी है जी। अच्छा, की मामला होया सी? ਤੁਹਾਡੀ ਬੱਚੀ ਕਿੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਸੀ? मेरी बेटी नैत औजले के घर काम करती थी जी। ਇਹ ਕੌਣ ਹੈਗਾ ਨੈਤ ਔਜਲਾ? नैत औजला जी इत्थों दा ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ है। ਤੇ ਉੱਥੇ ਕਿੰਨੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਪਈ 1.5-2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਹੀ ਰਹਿ ਰਹੀ ਸੀ, ਦਿਨ ਪਰ ਰਾਤ ਹੀ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਘਰ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਜਿਸ ਵਕਤ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੀ ਇਹ ਵਾਕਿਆ ਹੋਇਆ ਉਸ ਟਾਈਮ 5 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ को ਪੁੱਛਿਆ ਬੇਟਾ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਤੂੰ ਬਿਮਾਰ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਮਸਲਾ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਅੰਮੀ ਮੈਨੂੰ ਨਸੀਮ ਬੀਬੀ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ, ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ 7 ਮਾਹ ਦਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਅੱਛਾ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਬੇਟਾ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹਦੇ ਬੇਟਿਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੀ ਜੋ ਕੁਝ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਆਂਟੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਆਂਟੀ ਤੁਸੀਂ ਬੇਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਕੋਲ ਸਮਾਨੀਆਂ ਨਾਲ ਵਾਲੀ ਮੰਜੀ ਤੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਆਂਟੀ ਜੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਗਰੀਬ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨਾ ਲੱਖਾਂ ਤੇ ਨਾ ਹਜ਼ਾਰਾਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਬੇਟੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਬੇਟਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕਿਉਂ ਮੇਰੇ ਮਥਾਜ ਮੀਆਂ ਦੀ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੰਜ ਸਮਝੋ ਕਿ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਹੀ ਵੱਡਾ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਉਹਨੇ ਚੁੱਕੀ ਹੋਈ ਸੀ ਘਰ ਦੀ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਬੜੀ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜ਼ੁਲਮ ਜ਼ਨਾ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ। ਹਟ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਵਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਘਰ ਛੱਡ ਗਿਆ ਨੇ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਬੇਟੀ ਹੈ ਉਹ ਹਾਮਲਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ? ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਨੇ ਬਤਾਇਆ ਸੀ ਜੀ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਗਈ ਸਾਂ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿਣ ਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਤੂੰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣਾ, ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਮੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਤੇਰੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਮਾਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਇਹ ਕੌਣ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਹਾਜੀ ਨਸੀਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜੀ। ਅੱਛਾ। ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਤਾਇਆ ਤੂੰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣਾ, ਅਗਰ ਤੈਨੂੰ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਤੂੰ ਉਹ ਲੈ ਜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਹਾਮਲਾ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਹਾਮਲਾ ਚੌਧਰੀ ਦਨਾਨ, ਚੌਧਰੀ ਬਲਾਲ ਔਰ ਚੌਧਰੀ ਸਮਾਨ। ਇਹ ਕੌਣ ਹੈਗੇ ਨੇ? ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਸੀ? ਇਹ ਹੁਣ 2.5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ
ਕਿਦੋਂ ਲੱਗੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਹਟ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਸੱਟ ਗਏ ਨੇ, ਧਮਕੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ ਪੌੜੀਆਂ ਤੋਂ ਡਿੱਗ ਪਈਏ, ਪੈਸੇ ਲੈ ਲਾ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ, ਤੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾ, ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਪਾ ਦੇ, ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਘਰ ਚ। ਸਰ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਕਹਿੰਦੀ, ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾ ਸਕਦੀ। ਸਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੜੀ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ। ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਇਨਸਾਫ ਮੰਗਣੀ ਆ ਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵੱਡੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇਨਸਾਫ ਮੰਗਣੀ ਆ। ਮੈਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੋਰਟ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਫਿਰੀਆਂ, ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਅੱਛਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਜੋ ਹੈ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਜ਼ਨਾ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਚੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਬੱਚੀ ਦਾ ਕਤਲ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ? ਉਹ ਕਤਲ ਹੋਈ ਸੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਖੁਦ ਆਪਣੀ ਮੌਤ ਮਰੀ ਸੀ? ਉਹਨਾਂ ਜੀ ਬੱਚਾ ਜ਼ਾਇਆ ਕਰਵਾ ਕੇ, ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਨਾਲ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਕਰਵਾ ਕੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਸੱਟ ਗਏ ਨੇ। ਅਗਰ ਉਹਦਾ ਬੱਚਾ ਨਾ ਜ਼ਾਇਆ ਕਰਾਉਂਦੇ ਤੇ ਖਰੇ ਉਹ ਬਚ ਹੀ ਜਾਂਦੀ। ਬੱਚਾ ਜ਼ਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਵਾਇਆ? ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਕਰਵਾ ਕੇ ਮੇਰੇ ਘਰ। ਕਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ? ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਹੱਲੇ ਤੋਂ ਕਰਵਾਇਆ ਨੇ ਕਿ ਪੱਤੋ ਕੀ ਤੋਂ ਕਰਵਾਇਆ ਨੇ। ਇਹ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਏ, ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। ਮੈਨੂੰ ਸਾਰਾ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਕੋਈ ਪੈਸਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਦੌਲਤ, ਨਾ ਕੋਈ ਸ਼ੋਹਰਤ, ਮੈਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਆਏ ਆ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਲਗਾ ਰਹੇ ਨੇ ਹਾਂਜੀ, ਕਿ ਜੀ ਧਮਕੀਆਂ ਅਸੀਂ ਲਗਾ ਤੁਹਾਡੀ ਰਹੇ ਨੇ। ਬੱਚੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲਾਸ਼ ਹੈਗੀ ਉਹ ਵੀ ਕਬਰ ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਸੁੱਟ ਹਾਂਜੀ। ਦੇਾਂਗੇ, ਦਰਿਆ 'ਚ ਰੋੜ ਦੇਾਂਗੇ। ਇਹ ਕੌਣ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਅਗਰ ਤੂੰ ਇਨਸਾਫ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਨਾ ਲੈਂਦੀ, ਆਪਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤੂੰ ਦਰਖਾਸਤ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੇ ਅਗਰ ਤੇਰੀ ਬੇਟੀ ਨਹੀਂ ਪੱਟ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਛੱਡ ਦੀ ਤੇ ਫਿਰ ਤੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਡੀਐਨ ਟੈਸਟ ਬਣਵਾਏਂਗੀ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਤੂੰ ਕਰੇਂਗੀ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਅਗਾ ਤਿੱਕਰ ਤੂੰ ਜਾਏਂਗੀ। ਅੱਛਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਬੱਚੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਬੱਚੀ ਕਤਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਸੀ? ਇਹ ਜੀ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਖਰੀ ਸਾਹ ਸੀ ਉਹਦੇ ਕੋ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਰੋ ਕੇ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਅੰਮੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮਰ ਚੱਲੀ ਆ ਤੇ ਉਹ ਦਰਿੰਦੇ ਵੀ ਨਾ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹਿਣ, ਤੂੰ ਅੰਮੀ ਮੇਰੀ ਖਾਤਰ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ। ਮੈਨੂੰ ਦਬਾ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਆਂਦੀ ਸੀ ਤੇਰੇ ਵੀਰ ਮਾਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਤੇਰੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਸਾਰਾ ਅਸੀਂ ਚੁੱਪ ਰਹੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਂਦੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹੀਏ ਜਾਂ ਕੀ ਨਾ ਕਹੀਏ। ਉਹ ਅਮੀਰ ਆਦਮੀ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਗਰੀਬ, ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕੇ ਖਾਣੇ ਆ ਸਰ, ਸਾਨੂੰ ਬੜੇ ਗਰੀਬ ਆ ਅਸੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ ਸਰ। ਆ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਹੈ ਸਰ, ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਆ ਬੇਟੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਅੰਦਰ ਸੁੱਤੀ ਪਈ ਹੈ, ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਆ ਬੇਟਾ है, एक सर मेरा बेटा है। तो आपके शोहर क्या काम करते हैं? मेरा शोहर जी कोई काम नहीं करता, बस ਮੰਗ ਪੈਨ ਕੇ ਆਂਦਾ ਹੈ ਜੀ ਤੇ ਆਪਦੀ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਗੁਜ਼ਰ ਬਸਰ ਸਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਸਰ। ਉਹਨਾਂ ਬੜੀ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਮੈਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਜੋ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਸਾਰੇ, मेरी ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ अपील है, ਮੈਨੂੰ इंसाफ लेके दें जी, मैंने जरूर इंसाफ जी। बिल्कुल नाज़रीन, आपने ये बच्ची की तस्वीर भी देखी होगी और बीच में भी आप इस बच्ची की तस्वीरें देख रहे हैं। यकीन करें कि इस घर में वो मनाजिर हैं, ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर क्या हालात हैं इनके। माँ जी तुसी की कहोगे? ये उसकी दादी है जी, धमकियां लगाते हैं, रात को घर आते हैं, कहते हैं अगर किसी को बताया मार के सट जावांगे सी ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤੁਹਾਡਾ ਨਾ ਕੋਈ ਅੱਗਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਨਾ ਕੋਈ ਪਿੱਛਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। इन्ने पास रहेंगे ना? हाँ जी। नाज़रीन किराम, मेरे पास अल्फाज नहीं है कि मैं इस पे कुछ बात कर सकूं, लेकिन मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि एक खातून वजीर आला की मौजूदगी में जिसका ये दावा है कि खवातीन मेरी रेड लाइन है, मैं यकीन करें शर्म के मारा मैं इस पर बात ही नहीं करता कि हमें शायद ये इनको कोई नागवार ना गुजर जाए। लेकिन अगर इन मासूम बच्चियों के साथ इतना जुल्म हो रहा है तो आपकी रेड लाइन कब क्रॉस होगी, कब आपको हरकत आएगी, कब आपके अंदर ये दर्द महसूस होगा कि अगर एक माँ के साथ और उस माँ की बेटी के साथ जिसे कई माह तक ये लोग दरिंदगी का निशाना बनाते रहे और जब उनका पेट भर गया तो उन लोगों ने उससे बढ़कर दरिंदगी की। उस बच्ची के वो बाप भी मौजूद है जिनका हाथ एक कटा हुआ है। इनसे भी जानते हैं कि अब इनके साथ ये जो मुश्किलात पेश आ रही हैं, जब ये थाने जाते हैं तो वहाँ थाने का जो अमला है वो इनको क्या कहकर धक्के मारकर वहां से निकाल देता है। आइए इनसे बात करें। भाईजान ये बताइएगा कि अब आप लोग ये डीपीओ के ऑफिस गए थे, उन्होंने क्या कहा था आपको? ਉਹਨਾਂ ਸਾਜਿਆ ਕਾ ਪੱਤੋ ਚਲੇ ਜਾਓ, अच्छा, ਪੱਤੋ ਕੇ ਅਸੀਂ ਗਏ ਆ, ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਰਾਏ ਮੁਗਲ ਆ ਜਾਓ, ਉੱਥੇ ਚੱਲ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਣਨੇ ਆ। ठीक है। ਇਹ ਸਰ ਜੀ डीपीओ साहब मिले सी तानू? ਡੀਪੀਓ ਸਾਹਿਬ ਐਸਐਚ ਮਿਲੇ ਸਨ, डीएसपी। डीपीओ साहब ने क्या सीखे। इनसे बात करते हैं जी। आप क्या लगती हैं? जी मैं इनकी, ये मेरे भाई हैं। अच्छा, हाँ जी।
तो क्या बाजी है मामला, डीपीओ के पास भी आप ये दरखास्त लेके हम गए, वो क्यों नहीं कर रहे परस्यू? दरखास्त लेके गए थे तो उन्होंने बोला कि खुली कचहरी लगेगी सिटी थाना चूनिया में। अच्छा, तो हम फिर उधर आए हैं चूनिया में। ठीक है। चूनिया जब आए हैं तो उन्होंने बोला कि आप ऐसा करना कि आपको डीएसपी के ऑफिस से ये कॉल आएगी और वो आपको बुला लेंगे और आपके साथ इंसाफ होगा। अच्छा, ठीक है, हम उधर आए, जब हम पत्तों की गए हमें उन्होंने बुलवाया, हम पत्तों की गए, जब पत्तों की से उन्होंने बोला कि हम उधर जा रहे हैं थाना सराय मुगल, आप जल्दी जल्दी उधर आ जाओ। हम सब उधर चले गए। जब उधर गए तो वो कहते जी वो तो आगे कहीं और चले गए। फिर हम उधर सारा दिन बैठे रहे, धक्के खाते रहे, बातें सुनते रहे लोगों की। फिर हम वापसी आ गए, कहते जी सुबह आना 10 बजे, रात को कोई हम नहीं बात सुन सकते। सुबह हम फिर गए, कहते जी 2 बजे आ जाना। हम 2 बजे गए, फिर 2 बजे नहीं हमारी कोई बात हुई। वो कहते जी हम तो अभी उधर है, सुबह 10 बजे फिर आना। ऐसे ही हो रहा है जी बार बार। अच्छा, अब बच्ची का वो पोस्टमार्टम भी असर- हुआ था? नहीं, अच्छा, बिना पोस्टमार्टम के ही बच्ची को तदफीन कर बच्ची दी? को दफना दिया। जब दूसरे दिन इनकी जो अरशद भाई है ना, उनकी अम्मी और उनकी सास जिन्होंने नहलाया था, अच्छा। उन्होंने बोला कि ये पसलियां जो है वो तो गिरने से चलो टूट गई, ये जो गर्दन है ये भी नहीं हिल रही थी, तो इसके जिस्म से खून कैसे बह रहा था, जिस्म से खून बह रहा था। फिर जब उन्होंने अपनी बेगम, कोई चीज मारी थी उसके जिस्म के? नहीं, वो कह रहे थे कि सीढ़ियों से गिरी है, ये सीढ़ियों से गिरी। मुल्जमान कह रहे थे कि जी, सीढ़ियों से गिरी है। मुल्जमान कह रहे थे, ये नसीम बीबी कह रही थी। अच्छा। उनकी जो मुल्जिम है उनकी माँ है जो, अच्छा। वो कह रही थी। और जब इसने अरशद ने अपनी बीवी को अंदर बुलाया कि सही सही बोलो ये क्या माजरा है, जब हम दफना के आ गए हैं, दूसरे दिन की बात है 30 तारीख की, जब हम आए हैं तो इन्होंने फिर बताया कि मुझे इस तरह उन्होंने पिस्तौल रखा था बिलाल ने। अच्छा। और उसने ये बोला था कि घर जाके किसी को नहीं बताना, अगर किसी को बताया तो तेरे बच्चे और तेरे मियाँ को सबको ऐसे खत्म कर देंगे कि नजर भी नहीं आएंगे। ये बेचारी 2 दिन तो ऐसे खामोशी से बैठी रही। जब इसको इसके मियाँ ने पूछा, उन्होंने फिर बताया कि मेरे साथ इस तरह हमारी बेटी के साथ ये हुआ था जब मैं 24 तारीख वाले दिन गई हूँ उनके घर। अच्छा। तो ये माजरा मैंने देखा था, तो मैं तो उसी दिन थे खामोश होके। बाजी, अब आपका मुतालबा क्या है? पुलिस क्या कहती हमें है? पर्चा इंसाफ क्यों दर्ज चाहिए। नहीं कर रही? ये असर रसूख वाले आदमी हैं, राणा बरादरी जो है, राणा हयात साहब, उनके साथ उनके ताल्लुकात बहुत ज्यादा हैं। अच्छा। इसलिए हमारी कोई सुनवाई कहीं भी नहीं हो रही। हम चाहते हैं कि राणा साहब, राणा सिकंदर हयात साहब और मरियम नवाज साहबा हमारी दादरसी करें, हमारी इमदाद करें, हमें इंसाफ दें। जी बिल्कुल नाज़रीन इकराम, इन्हें सिर्फ इंसाफ चाहिए और ऐसे जालिम दरिंदों के खिलाफ जो है वो सख्त एक्शन लेना चाहिए ताकि आइंदा किसी भी ऐसी बेटी के साथ इस तरह का कोई वाकया पेश ना आए। अब चूंकि मुल्जमान यहाँ पर असर और रसूख वाले हैं और पुलिस इनकी किसी भी किस्म की कोई दादरसी करने के लिए कुछ भी नहीं कर रही, सिर्फ सवाए इनको कि कभी इस थाने में आ जाएं तो कभी वहां पर आ जाएं। ये गरीब लोग हैं, क्या ये गरीब लोग इस तरह धक्के खाते रहेंगे? क्या पुलिस का काम ऐसे बाअसर माफिया को बचाना है या फिर इन जैसे गरीब लोगों की मदद करना है? आईजी पंजाब साहब, मेरी आपसे गुजारिश है, आप माशाल्लाह से बहुत अच्छा काम करते हैं, लेकिन तब हम आपको अच्छा कहेंगे जब आप इन जैसे गरीब लोगों की मेरिट पर तफ्तीश करें। अगर उस बच्ची के साथ ज्यादती हुई है, अगर उस बच्चे को हमल जाया करवाया गया है, तो वो उसका पोस्टमार्टम करवाया जाए। उसकी कब्र कशाई करवाने के बाद जब उसका पोस्टमार्टम होगा तो हकीकत बिल्कुल सामने आ जाएगी और उसके बाद जो कार्रवाई जिस मुल्जम के खिलाफ बनती है उसके खिलाफ वो कार्रवाई करें, और ताकि इस तरह के गरीब लोग जो हैं उनको आप पर और आपकी पुलिस पर जो है वो एतमाद जो है वो बहाल हो, ताकि ऐसा ना हो कि ये लोग जो हैं आज इस अपने घर के अंदर ये बेबसी की तस्वीर बनकर आप लोगों को सिर्फ इतना सा मुतालबा कर रहे हैं कि हमें सिर्फ इंसाफ चाहिए। बाजी, आखिरी बार आपकी बेटी की क्या बात हुई थी? मेरी बेटी की यही बात हुई थी, अम्मी बस वो दरिंदे जिंदा ना रहे, मैं मर जावा तो दरिंदे भी ना जिंदा रहे, उनको भी फांसी हो जाए। मैंने कहा बेटा मैं क्या कर सकती हूँ, मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था मैं क्या करूँ क्या ना करूँ। वजीर आला मरियम नवाज साहिबा आपकी आवाज सुन रही हैं, उन्हें क्या पैगाम देंगे? उन्हें यही पैगाम है कि इस माँ की यही अपील है, मेरी बेटी मर गई है वो दरिंदे भी ना जिंदा रहे, मेरी बस यही अपील है। मेरे कलेजे को तब ठंड पड़ेगी कि चौधरी उस्मान और दनान और बिलाल इनमें से एक को
मौत के घाट उतारा जाए, उन्हें पता लग जाए कि ये गरीब माँ क्या चाहती है क्या नहीं चाहती। मुझे 8,000 महीने तनख्वाह देते थे, वो मेरी इज्जत की रोटी थी, मैं खाती थी, मगर बगैरती की रोटी नहीं मैं खाती थी जैसी उन्होंने मुझे खिलानी चाहिए। वो कहते हैं 5 लाख ले लो, 6 लाख ले लो, आवाज बंद कर दो। मैं कैसे आवाज करूं जब मेरा जिगर का टुकड़ा ही नहीं मेरे पास है। अगर आप लोगों को इन्होंने पैसे ज्यादा की ऑफर की, या फिर यहाँ का कोई और वडेरा, कोई और चौधरी आ गया आपको धमकाएगा या फिर पैसों हाँ का जी, लालच धमका देगा, रहे हैं। तो फिर आप क्या करेंगी? इंसाफ चाहिए, मुझे सर, इंसाफ पैसे चाहिए, नहीं मुझे पैसे नहीं चाहिए सर। पैसे मैं क्या करूंगी पैसों को लेके? पैसे कंजरा हाँ बिल्कुल नाज़रीन किराम, इन्हें सिर्फ इंसाफ चाहिए, और यकीनन इंसाफ से बढ़कर कोई भी चीज जो है वो अहम नहीं होती। अब अगर ये लोग जो बासर लोग हैं या इस इलाके के जो माफिया हैं, वो अगर इनको डरा धमका रहे हैं, तो उनका मकसद सिर्फ ये है कि उन्होंने ये जुर्म किया और इस जुर्म की सजा से ये बचने की कोशिश कर रहे हैं। मैं दोबारा अपील करूंगा अपने पुलिस के आला अफसरान से कि इनकी ये दरख्वास्त पर जो है जो कार्रवाई बनती है उसके मुताबिक करें, और उस मासूम मकतूला बच्ची को कब्र से निकालकर उसकी कब्र कशाई करवाकर उसका पोस्टमार्टम करवाएं और इन कसूरवारों के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाए। इजाजत चाहूंगा। अल्लाह निगहबान।